Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are having lecture number 2 of linear algebra. In previous lecture we have studied about introduction to linear equations and their solutions, physical interpretation of linear equations, system of linear equations, matrix form of linear equations, and at the end augmented matrix and coefficient matrix of a system of linear equations. Now today we are going with the topics row echelon form with example, reduced row echelon form with example, elementary row operations, conversion of a matrix to a reduced row echelon form. So again we are on chapter number 1, and these are linear equations and matrices. So first of all, let's define row echelon form. A matrix is in row echelon form when it satisfies the following conditions. The first non-zero element in each row, called the leading entry, is 1. Number 2, each leading entry is in a column to the right of the leading entry in the previous row. Number 3, rows with all zero elements, if any, are below rows having a non-zero element. And so we have 3 properties of matrix which is in row echelon form. This is some other form that is known as reduced row echelon form. A matrix is in reduced row echelon form when it satisfies the following conditions. Number 1, the matrix is in row echelon form, that is, it satisfies the 3 conditions listed above. And number 2 is, if a column contains a leading 1 entry, then all other entries in that column are 0. So we can say, if a matrix is in row echelon form, then it must satisfy only one condition, that is, if any column of that matrix contain a leading 1 entry, then all other entries in that column are 0. Here are some examples which are not in row echelon form. Here you can see that matrix A, B, C and D, 4 matrices are given here. Matrix A contains 0 row which is in the middle of that 2 rows, first and third, which is not possible. This in the we can see in this is 1 in the second column, this 1, and this 1 is the leading 1 of the third row, but you can see in the second row it is 1 on the right of this leading 1 of row 3. That is also not possible, because we have seen that in row echelon form any leading 1 of any row should be on the right of its preceding row. सेकेंड रो में थर्ड पोजीशन, थर्ड कॉलम में 1 है, और थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर ये रो echelon फॉर्म में चला जाएगा. Now let's come on C matrix. Here this you can see कि पहली रो का लीडिंग 1 this one, दूसरी रो का लीडिंग 1 नहीं है, ये 2 की जगह पर 1 होना चाहिए, तब ये रो echelon फॉर्म में होगा. Similarly in the matrix D, this is -1 which cannot be leading 1. अपनी रो का ये लीडिंग 1 होने के लिए इसको माइनस को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब ये रो echelon फॉर्म में
मैट्रिक्स आ जाएगा। Here are some examples of matrices in echelon form. This you can see कि पहली रो का leading one is this one, दूसरी रो का leading one, this is on the right of that one, and below and on the right of that leading one. और इससे पहले सारी एंट्रीज जीरो भी होनी जरूरी है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है रो एचेलन फॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज। सेकेंड मैट्रिक्स को देखें, दिस इज 1 0 2 0 1 2। तो पहली रो का लीडिंग वन इज दिस वन और दूसरी रो का लीडिंग वन इज दिस वन। लीडिंग वन से पहली सारी एंट्रीज जीरो हैं, यस। और ये जो लीडिंग वन है दूसरी रो का, ये पहली रो के लीडिंग वन के राइट पर भी है और बिलो भी है। और थर्ड मैट्रिक्स पे आए, दिस वन इज द लीडिंग वन ऑफ फर्स्ट रो। सेकेंड रो में लीडिंग वन नहीं है, सारी रो जीरो है। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एचेलन फॉर्म। Now let's come on last matrix 1 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1. So first row का leading one is this one, second row का leading one is this one, which is on the right and below of this leading one. Third row का leading one जो है वो ये है, and this इससे पहले सारी एंट्रीज जीरो भी हैं और ये leading one पिछली रो के leading one के राइट पर भी है, राइट। तो ये चारों मैट्रिसेस जो हैं ये रो एचेलन फॉर्म में। Here are some examples of matrices in reduced row echelon form. तो जो reduced row echelon form में मैट्रिसेस हैं उसमें जो स्पेशली जो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो इससे पहले रो एचेलन फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, वो ये है कि हर रो का लीडिंग वन जहां भी लोकेट कर रहा है, मसलन पहली रो में ये जो वन है ये लीडिंग वन है अपनी रो का, तो इसके नीचे दो एंट्रीज हैं, अगर ये जीरो नहीं है तो इनको जीरो बनाना जरूरी है। तो ये अगर ये जीरो हो जाएंगी तो ये इस कॉलम, ये कॉलम जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट लीडिंग वन को देखें, अगली रो का जो लीडिंग वन है वो राइट पर भी है, बिलो भी है और इससे पहले सारी एंट्री जीरो भी हैं, लेकिन इस वन के ऊपर और नीचे भी जीरो होना जरूरी है जो यहाँ पे हो रहा है। इस तरह थर्ड रो का लीडिंग वन इज दिस वन और इससे पहले सारी एंट्रीज भी जीरो है, इससे ऊपर और इसके नीचे तो कोई एंट्री है नहीं है, इसके ऊपर सारी एंट्रीज का जीरो होना जरूरी है, विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग हियर। इसी तरह से यहाँ पर देखें, here we can see कि no, this is not in reduced row echelon form। क्यों कि ये सारी लीडिंग वन एंट्रीज तो मौजूद है अपनी अपनी रोज में, लेकिन इस वन के ऊपर टू है और इस वन के ऊपर जीरो और ये सेवन है। So this is not in reduced row echelon form. Now let's come on elementary row operations. क्यों हम करेंगे elementary row operations? क्योंकि हमने किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड में या सिंपल रो एचेलन फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हम लीनियर सिस्टम को मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं और मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमें उन मैट्रिसेस को कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में लेके जाना है, विच आर दीज टू फॉर्म्स। इन फॉर्म्स में जाने के बाद जो सिस्टम है उसका हमारा सोल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। वी ऑल नो कि जो भी सिस्टम है उसको हम उससे रिलेटेड हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी स्टडी किया था लास्ट टाइम और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में भी बात की थी। तो जो सिस्टम जो भी है वहां से हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, वहां से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख सकते हैं और फिर उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर हम डिफरेंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके उसको एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम वापस
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाएंगे और फिर हम वहां से सोल्यूशन देंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस्म के रो ऑपरेशंस यहाँ पर अलाउड हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, किसी भी हम रो को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो, किसी रो adding a multiple of one row to another row, एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग 2 रोज, किसी मैट्रिक्स की हम 2 रोज चेंज कर देंगे, उससे मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। So there are 3 elementary row operations through which we are going towards towards finding the solution of a system of linear equation. यहाँ पर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके बताए हुए हैं। मसलन यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहला जो है वो इंटरचेंजिंग रो 1 एंड 2 है। इन दोनों एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करने से मैट्रिक्स में कोई उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं आएगा। स्विच एनी 2 रोज, यहाँ पर पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दिया गया है। So this is allowed in the elementary row operations. Multiply a row by a non-zero constant. तो किसी भी रो को हम जैसे 2 5 3 3 4 6 है, तो हमने पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो this will become 6 15 9 3 4 6। और इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक रो को दूसरे में ऐड कर लें, या जैसे पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके और दूसरी रो में ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 3 जो सेकेंड रो है उसमें सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड कर दिया, यानी 3 + 2 4 + 5 एंड 6 + 3। So we can do कि हम किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। This we can say कि हमने पहली रो को 1 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो में ऐड कर दिया। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी रो में ऐड कर दें। इससे दूसरी रो चेंज हो जाएगी लेकिन पहली रो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगी।